ترکستان سے جو درویش آ رہے ہیں شیخ محترم تو انہیں جانتے تک نہیں، پھر ہم کس طرح پہچانیں گے انہیں؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں، جب سامنے آئیں گے تو پہچان لیں گے۔ مگر وہ آ کہاں سے رہے ہیں؟ شیخ محترم واقف ہیں کیا ان سے؟ ملنے پہلی بار آ رہے ہیں، ویسے غائبانہ طور پر جانتے ہیں شیخ محترم کو۔ غائبانہ طور پر کیسے؟ ہر سوال کا جواب مل جائے گا تمہیں وقت آنے پر۔ یوں سمجھو کہ پیر و مرشد احمد یوسفی کا ایک چراغ ہے ہماری درگاہ، اور صرف یہ ایک نہیں، سارے ترکستان سے رومیلی تک روشن ہیں یہ چراغ، اور یہ سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں دل سے، اس طرح ایک دوسرے کو جانتے ہیں ملے بغیر بھی۔ السلام علیکم درویش برادران۔ وعلیکم السلام برادران۔ درویش کہاں ہیں؟ لشکری ہیں آپ تو۔ کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ اسی کی طرف سے آئے ہیں، اسی کی طرف جا رہے ہیں۔ قرب الہی نصیب ہو آپ کو۔ قرب کے اصول ہیں، اور اصول بغیر حصول ممکن نہیں۔ ہو شیخ محترم۔ اللہ ہو۔ رومیلی سے مہمان تشریف لے آئے ہیں شیخ محترم۔ ہو میرے شیخ۔ اللہ ہو۔ خوش آمدید کلی یوسف۔ استغفر اللہ۔ کرامان کے علاقے سے دردان کا بیٹا حسین آپ سے فیض لینے حاضر ہوئے ہیں شیخ۔ خدمت سے ملے گا انشاءاللہ۔ کونیا سے حاجی مسعود کا بیٹا ارسلان تیکن آپ سے فیض لینے حاضر ہوئے ہیں شیخ۔ خدمت سے ملے گا انشاءاللہ۔ نکسار کا رہائشی حاجی علی کا بیٹا بکر آپ سے فیض لینے حاضر ہوئے ہیں شیخ۔ خدمت سے ملے گا انشاءاللہ۔ انطالیہ کی سرزمین سے حسن علی کا بیٹا احمد آپ سے فیض لینے حاضر ہوئے ہیں شیخ۔ خدمت سے ملے گا انشاءاللہ۔ محترم سالتوک بابا نے آپ کے لیے تحائف بھیجے ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے پاس بھی ان کے لیے کچھ تحائف ہوں گے، ہم ان کے تحائف آپ تک پہنچانے اور ان کے تحائف آپ سے وصول کرنے آئے ہیں۔ کیا کہنے ہیں سالتوق بابا کے، اہل حق کوئی کام بے مقصد نہیں کرتے۔ بلغاریہ کے شہر وارنا کی سوغات ہے یہ شیخ، شہد ہے۔ اپنے معمولات میٹھی زبان کے ساتھ فرماتے ہیں سالتوق بابا، اور وہ کہتے ہیں ہماری باتیں تمثیل کہتی جاتی ہیں، افسانہ کہہ دی جاتی ہیں، مہارت نہیں مانی جاتی ہماری۔ ہاں وہ کہتے ہیں نا، مکھی شہد بناتی ہے مگر طریقہ نہیں سمجھا سکتی۔ واہ سبحان اللہ پیر بھائی، یہ انمول چیز تو خاص ہمارے لیے ہے۔ بہت خوشی ہو رہی ہے، آپ نے رونق بخشی فقیر خانے کو برادران۔ چلیے آئیے کچھ تناول فرما لیجیے باقی باتوں سے پہلے، تھکن بھی ہوگی اور بھوک بھی۔
भाइयों, कल हमारी दरगाह पर यसवी सिलसिले का एक चांद तुलू हुआ था और आज देखिए रुबीली का चांद आबोताब के साथ रोशनी फैला रहा है। लायक एहतराम सरी साल्तूक इज्जत मुआब के दरवेश मुलाकात को तशरीफ लाए हुए हैं। मेहरबानी कि उन्होंने हमें एजाज बख्शा और सद शुक्र उस कादिर मुतलक का है कि हमारी जिंदगी ही में यसवी तालीमात की जगमग किरणों ने रुमीली तक उजाला कर दिया है। लायक एहतराम साल्तूक बाबा की मेहनत है कि ऐसे मुबारक दिन देखने नसीब हुए। अच्छा, बातें भी हो गई काफी और लायक एहतराम साल्तूक बाबा इज्जत मुआब के तहफ़ का भी जिक्र हो गया। तो चलिए अब जिक्र की मजलिस मुनाकिद करते हैं। इजाजत है फर्जंद। ला माबूदा वला मकसूदा वला मुराद इल्ला नूर जमाले या हजरत याहू 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 आहू 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 हमें अपने मेहमानों का ख्याल रखना आता है यूनुस अफंदी, आप ज़हमत ना कीजिए, फरीज़ा तो हमारा है। मेहमानों की खातिर मदारत करना फरीज़ा कब से समझने लगे आप पीर भाई? आदम अफंदी, तुम हमारे मेहमानों की खातिर तवाज़ु करो। आइए मोहतरम हजरात। किस मकाम की हिर्स है आपको यूनुस अफंदी? हमें जो कुछ मिला है, अगर आपको मिला होता तो लगता है ईमान ही खो बैठते आप अपना। ईमान से बढ़कर कौन सी ऐसी नेमत होगी भला जो आपको मिल गई पीर भाई? इन चिकनी चपड़ी बातों से हर वबाल टल जाएगा, इस ख्याल में ना रहिएगा यूनुस अफंदी। वबाल टलने के लिए ही होते हैं। आखिर दरगाह में क्यों पड़े हैं आप? जाइए शेर लिखिए, शायर बनिए। शुक्र है खुदा का, हमें जिस जगह पर होना चाहिए वहीं हैं हम पीर भाई। आगे हम क्या करते हैं, क्या बनते हैं, शेख मोहतरम की मर्जी है ये। बस दुआ है रब हमें कभी उनसे जुदा ना करे, इसके अलावा और कोई ख्वाहिश नहीं हमारी। कसूर कोई हो जाए अगर हमसे तो रवैये से नहीं, अपने लफ्जों से साफ साफ बयान कर दिया कीजिए पीर भाई। शायरों के खोखले अल्फाज में हिकमत तलाश ना कीजिए। खोखले अल्फाज शेर बन ही कब सकते हैं कि शायर के अशार कहलाएं पीर भाई?
लफ्जों को पकड़कर लोगों को नीचा दिखाना छोड़ दें पीर भाई। अच्छी बात करें और साफ तौर पर करें। खता अगर हमारी है तो निशानदेही करें बेशक, खता नहीं है अगर तो अपने गिरेबान में झांकें। आजिज पड़ा हूंगा मैं जिस दम मलाइक करीब आएंगे। रब तेरा कौन है सवाल करेंगे, क्या करूंगा उस दम या अल्लाह। जब मुझे कब्र में उतार के लोग कुछ कदम दूर चले जाएंगे, फौरन ही मुनकर नकीर आ जाएंगे, क्या करूंगा उस दम या अल्लाह। रब तेरा कौन है वो पूछेंगे, उस दम हर समत होगी तारीकी। रब तेरा कौन है वो पूछेंगे, क्या करूंगा उस दम या अल्लाह। फकीर ख्वाजा अहमद तेरा आजिज बंदा, नफस नफस रहता है पशेमान। माशर जिस घड़ी बरपा होगा, क्या करूंगा उस दम या अल्लाह। हज़रत ख्वाजा यसवी की तुर्किस्तान में यसवी दरगाह से हमारे पीर भाई इलियास अता और उनके दरवेशों ने यहाँ तशरीफ़ लाकर हमें नाकाबिल बयान इज़्ज़त बख्शी है। ख्वाजगान सिलसिले के दौरे हाजिर के चमकते दमकते सितारे और सरी सालतूख इज़्ज़त मुआब के खलीफा कुले यूसुफ और उनके दुर्वेशों ने भी फकीर खाने को रौनक अफरोज कर दिया। ये उनकी मेहरबानी है। हमारा दिल खुशी से निहाल है, मगर कुछ वक्त ठहर कर मुसाफिर अपनी राह चल देते हैं। पीरे तुर्किस्तान के दयार से आने वाले हमारे भाई हों या रुमेली की सरजमीन से वारिद होने वाले दुर्वेश हों, वो सालतूक बाबा की तरह खिदमत खल्क की राह पर गामजन हैं। खुदा उन्हें और तरक्कियां दे। कुले यूसुफ। जी शेख मोहतरम। सालतूक बाबा ने हमें जिन चीजों के लिए हुक्म भिजवाया था वो हमने तैयार कर ली हैं। अस्तबलदार के लिए उनकी फरमाइश के मुताबिक आपके साथ जाएगा। सरोहान हमारा, हमारी तरफ से खास तोहफा। हमारे पास आओ।
अपने दस्ते शफकत से कभी महरूम न कीजिएगा। आपका फैज़ हमेशा जारी रहे। हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। खिदमत से गाफिल न होना कभी सरहान। और जो लायक एहतराम पीर भाई ने हमसे एक लोहार की हाजत का इजहार किया, वो हमारा दुर्वेश अय्यूब है। आपका हुक्म सर आंखों पर शेख मोहतरम। आपका फैज़ हमेशा चाहिए। हमेशा खिदमत गुजारी में रहना अय्यूब। और अच्छा, अब सबसे आखिर में साल्तूक गाजी बाबा ने हमसे जो दरख्वास्त की है एक राजमिस्त्री के लिए, वो दुर्वेश अली जान है। उसे भी हम बखुशी देते हैं। आपका फैज़ हमेशा कायम रहे शेख मोहतरम। हमेशा खिदमत गुजारी में रहना अली जान। अच्छा, तो चलिए, आपकी राह मुंतजर है। आखिर कब बाहर आएंगे शेख मोहतरम? आ जाएंगे अभी। मुझे तो लग रहा है जैसे ख्वाब है ये सब। सरूहान आगा वाकई रुमेली चले जाएंगे और हम उन्हें कभी नहीं देखेंगे। बिल्कुल चले जाएंगे। यानी ख्वाब नहीं है ये? ख्वाब ही था किसी का तो। जो ख्वाब में ना देखी हो ऐसी जगह जा सकता है कोई? कभी ना कभी तो ख्वाब देखना ही होता है ताकि इंसान उस जगह पहुंच सके। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह की अमान। कहा सुना माफ कीजिए। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे अली ताई को। अल्लाह खुश रखे आपको। सरूहान, आगे आओ यूं, जरा दिखाओ अपना पुरजमाल चेहरा। बूढ़े शेख की आंखें साथ छोड़ रही हैं अब। खुदा जाने कभी तुम्हें देख सकूंगा या कभी नहीं अय्यूब। अस्तगफिरुल्लाह। अरे सिर्फ आंखें ही नहीं, अक्ल भी साथ छोड़ती जा रही है बड़े मियाँ की। लकड़ी की तलवार दे रहा है जी बहलाने वाले खिलौने जैसी। अस्तगफिरुल्लाह। क्या फरमाते हैं हजरत मौलाना रूमी? अर्ज करो।
तुम्हें अगर मीरास में मिल जाए हजरत अली की मशहूर तलवार जुल्फ़िकार, मगर तुम्हारे पास हजरत अली जैसा दिल ही ना हो, तो जुल्फ़िकार क्या करेगी? चलो आ जाओ आगे अली जान। जुबान दराजों के सामने ही नहीं, इज्जतदारों के सामने भी चुप रहता है अली जान। पत्थर शायद बोल पड़े, अली जान का बोलना मुश्किल है। यही वजह होगी तभी ये पत्थरों की जुबान समझता है। अच्छा, फनकार बनकर दिखाना रोमीली वालों को अली जान। जी बिल्कुल। ऐसे पुल बनाना जो दरियाओं पर मुअल्लक हों, मस्जिदें ऐसी जो खल्क के लिए साहिबान हों, और नहरें वो जिनमें आब हयात रवा हो। लाओ ये दो इस्माइल जान। फतूहात मुस्तक़बिल मुबारक हो आपको। रुमेली को फूलों से महकता एक गुलशन बना दीजिए। आपकी तलवारें काटदार और दिल हमेशा फराख रहें। आप जहाँ कहीं भी जाएं, जर्रे से पहाड़ तक, चींटी से ऊंट तक, तमाम तर मखलूक़ात और बिलखुसूस इंसानों से शफ़क़त का मामला कीजिएगा। आपके अल्फाज हाल दिल का अक्स बने, तबलीग ज़बान हाल से हो। दिलों को दिलों से जोड़िएगा हमेशा। हर नस्ल व मजहब वालों की हर तरह के इम्तियाज से बालातर होकर खिदमत कीजिएगा। जहाँ जाएं वहाँ कायम कीजिएगा इश्क की लाजवाल इमारत। हर वो काम जो आपको सौंपा जाए वो इंसानों के फायदे के लिए कीजिएगा। हमारा मकसद अल्लाह के कलमे को दिलों पर नक्श करना है। हमारा मकसद हुसूल ज़मीन नहीं, इस जहां की तमाम ज़मीनों के मालिक बन जाओ तो भी हक अदा नहीं होगा। अहम ये है कि इस जहां को बुलबुले हक की खुशकुन सदा के साथ अलविदा कहो। वो सदा तौहीद के कलमे के सिवा और कुछ नहीं। रसूलुल्लाह की इनायत खास होगी। रोमेली से इस्लाम आगे और बहुत से मुल्कों तक पहुंचेगा, क्योंकि रोमेली औलिया और पीरों की सरजमीन है। दुआ है कि इस्लाम को मजीद तक़वियत मिले। आमीन आमीन। अगर कभी किस्मत फिर यहाँ ले आए और उस वक्त ये बूढ़ा दुनिया से रुखसत न हुआ हो, तो हाल अहवाल पूछने के साथ हमारे साथ एक प्याला यखनी का पी लीजिएगा। और उम्र ने वफा न की अगर, तो कहा सुना माफ कर दीजिए। आपने तो खैर क्या कहा होगा, लेकिन ऐसा हुआ हो या चाहे न हुआ हो, माफ किया। कले यूसुफ, हमारे पीर ख्वाजा अहमद यस्वी की हिकमत का खजाना है ये। हमें ये तो वतन मौसूल हुआ था। इन लोगों ने इसकी नकल तैयार कर ली है, तो अब हम ये नुस्खा श्री साल्तूक बाबा को तोहफतन भेजना चाहते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि यस्वी छांव तले ये इश्क़ हकीकी की आतश पूरे रुमीली में फैल जाए। रुमेली के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पीरो मुर्शद यस्वी की हिकमत भरी बातों के चर्चे हों।
अच्छा, लायक एहतराम साल्तुक बाबा, हमारा इश्क नियाज पहुंचा दीजिएगा यस्वी के हिकमत भरे कलाम का तोहफा लेकर। वारना से वच तक और उदरना से व्याना तक नूर फैला दीजिए उन सरजमीनों में, पानियों पर मुसल्ले बिछा दीजिए, इस्लाम का परचम आसमानों तक लहरा दीजिए। अच्छा, बताओ यूनुस, क्या जवाब चाहिए हमसे? पहले कब कोई जवाब दे सके हैं हम जो आप पूछ रहे हो? कल रात मैंने ख्वाब देखा शेख मोहतरम। जब तक हमें बताओगे नहीं कैसे मालूम होगा हमें? अस्तगफिरुल्लाह। मैंने देखा एक बहुत अजीम समंदर, बेहद व बेकनार, और मैं उसके ऊपर आपके साथ चलता जा रहा हूं शेख मोहतरम। डूबे तो नहीं कहीं हम यूनुस? हिफाजत से पहुंच गए थे ना साहिल पर? शेख की कश्ती पे होके सवार आ गया हूं साहिल दरिया के पार। जाना है मुझको उस अनदेखे के दयार। हो शहंशाह मन हो। कहा था ना हमने यूनुस? हाँ यूनुस अफंदी, क्या कहा था हमने तुमसे कुछ अरसे पहले यूनुस अफंदी? हमें दरिया पर से गुजरने वाले नहीं, दरिया में उतरने वाले चाहिए, पानियों में गोते लगाने वाले। देखो, तीसरा पर्दा उठाने जा रहे हो तुम। बहुत वक्त पहले हमने तुमसे कहा था गुजर जाओ नफ्स लव्वामा की मंजिल से, और तुम बखैरियत गुजर गए लव्वामा की मंजिल से। निकल गए तुम इस जलाल भरी राह से। तो सफर खत्म हो गया क्या यूनुस? यहां से एक दूसरी हद शुरू होती है, और ये नफ्स मुल्हमा है। जिक्र होगा अब तुम्हारा, जिस काम में मसरूफ हो, बा आवाज या खामोशी से हू का जिक्र करो, वाजिब है तुम्हारी जुबान पर। आशिक दिल की जबान से कलाम करता है यूनुस। वैसे तो जिक्र हमेशा बाआवाज़ बुलंद करना चाहिए, मगर जिस वक्त लोगों के दरमियान हो तो चुपचाप जिक्र करो। लोगों के बीच बाआवाज़ बुलंद जिक्र करने वाला दीवाना कहलाता है, ख्वाह वो वली क्यों न हो। तुमने क़ाराताई में बहुत काबिल असातिज़ा से अरबी सीखी है यूनुस। जानते हो क्या माने हैं मुल्हमा के? मैं नहीं जानता। इल्हाम से निकला है ये लफ्ज। मुल्हमा इल्हाम के लिए खुला हुआ। अच्छा, मगर होना क्या है आखिर इसमें यूनुस? आओ जरा गौर व फिक्र करते हैं। इल्हाम अक्ल पर नहीं, दिल पर हुआ करता है यूनुस। कभी न भूलना, हमेशा याद रखना यूनुस। इस राह पर कदम अक्ल के साथ रखते हैं, मगर फिर अक्ल को छोड़ देते हैं।
दिल के सहारे आगे बढ़ते हैं। आज के बाद से तुम्हें अक्ल से हरगिज काम नहीं लेना यूनुस, क्योंकि आज के बाद तुम्हारे सारे काम दिल से होने चाहिए। कोई काम करो तो दिल से, कुछ खाओ पियो तो दिल से, जो लफ्ज भी जुबान से निकले लाजमन दिल से हो। जो भी कदम उठाओ, तुम जो सांस लो वो दिल से हो। आज के बाद तुम्हारा दोस्त सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा दिल है। तुम सोच रहे होगे जाल नहीं बिछे होंगे क्या नफ्स के लिए? शैतान बड़ा मक्कार, दोगला और हीलाकार है। हक का रूप भी धार लेता है बाज़ औक़ात। हक की और हकीकत की नकल बन जाता है। तो जो लोग असल में और नकल में तमीज़ ना कर सके उनके हाल पर रहम हो। शैतान को देखते हैं तो जिब्राइल समझ लेते हैं उसे। खबरदार रहना यूनुस, होशियार रहना हक के भेस में छुपे शैतान से। हमारा दिल रूहानी है यूनुस और बदन हैवानी। ये दोनों मुस्तकिल हालत जंग में रहते हैं। इस मुट्ठी भर खाक और चुल्लू भर पानी से बने पानी वजूद पर कब्जे के लिए ऐसी जंग जारी है कि काफिर और मोमिन के दरमियान कभी न खत्म होने वाली जंग हो, जैसे हमेशा जारी रहने वाली जंग जो हमारे अंदर जारी है और हमें खबर ही नहीं। तो ये जान लो यूनुस कि हैवान इल्हाम से महरूम हैं। इल्हाम इंसान को हैवान से मुमताज करता है। दिल को पाक रखने वाले खुद को इल्हाम के इस्तिक़बाल के लिए तैयार करते हैं, और जो दिल को पाक नहीं रखते समझो गोया हैवान है वो। कभी न भूलना यूनुस, इल्हाम नेक दिलों के लिए है। बद खसलतों का इल्हाम से कोई वास्ता नहीं। शैतान को इल्हाम कभी नसीब नहीं हो सकता। यही सबब है कि वो सिर्फ नकल ही कर सकता है। हकीकत तक सिर्फ इल्हाम ले जाता है। कभी न भूलना यूनुस कि इल्हाम वालों के लिए दुनिया जाए इबरत है। इबरत न पकड़ने वाले दुनिया के लिए इबरत बन जाते हैं। तो ये है नफ्स मुल्हमा यूनुस। आज के बाद से इस आलम में तुम्हारी दुनिया रूह और हाल इश्क है। तुम्हारे दिल में आने वाले ख्यालात मारिफत हैं। मगर ये बात हमेशा याद रखना यूनुस, नफ्स मुल्हमा अजाब और निजात के दरमियान हद फासिल है। अगर गफलत में जरा भी पड़ गए, ख़ास लम्हे भर के लिए ही, तो वापस आगाज सफर पर आके रोगे। नफ्स मरता नहीं यूनुस, बस सो जाता है। खबरदार रहना, खुद को सोता जाहिर करने वाले शैतान से धोखा न खा जाना। खबरदार रहना। इधर आओ मेरे पास यूनुस, मेरे जानू से जानू मिला के बैठो। जरा अपना दायां कान मेरे करीब लाओ ताकि तुम्हें मुल्हमा के अस्मा की तलक़ीन कर सकूं। हो हमने क्या कहा यूनुस? हु कहा आपने शेख मोहतरम। इसी लम्हे से कलेमे तौहीद के साथ
इसमें जलाल का व्यर्थ करते हुए हो इसम भी शामिल कर लो। तो बस याद रखना, आज के बाद से हो के जिक्र को जुबान से कभी खाली न छोड़ना। ये करोगे तो इल्हाम का दरवाजा खुलेगा तुम पर। कभी न भूलना यूनुस, मलहमा के दरवाजे से लौटना आसान है, गुजरना बेहद मुश्किल। लाओ बच्चे, इसमें डाल दो। हाँ, आराम से। शेख मोहतरम है क्या इस वक्त? हाँ है इस्माइल, हुआ क्या है बताओगे? उन्हीं के पास जा रहा हूँ मैं। मेरी बात सुनो इस्माइल, आखिर हुआ क्या है? कुछ तो बताओ, रो क्यों रहे हो? बताते क्यों नहीं इस्माइल? हुआ क्या है? इतने परेशान क्यों हो तुम, बताओ। ज़ायदा खातून जानदार रोगलों ने मार डाला ज़ायदा खातून को। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ताया, ताया जान, कैसे हैं आप ताया जान? उस दरगाह की वजह से कैसी आलीशान बुलंदी से किस पाताल में उतर गए हम। मुकद्दर में जो लिखा हो उसे दुनिया की कौन सी ताकत रोक सकती है ताया? मुकद्दर। ये मुकद्दर की बात नहीं कासिम, कोई और ही कारस्तानी लग रही है हमें। हो सकता है हमारे मुकद्दर की डोरे कोई और ही हिला रहा हो कासिम। जादू है यकीनन, काला जादू। सुल्तान क्लेचर स्नान ने भी जादू कर रखे हैं दुश्मन को शेर करने के लिए। आप जैसे अजीम सरदार के मुकद्दर की डोरें उस कादिर मतलक के सिवा कौन हिला सकता है? नहीं, इस काम की मंसूबाबंदी बहुत पहले की गई थी। उस चुड़ैल को मेरी हवेली में किसी मकसद के लिए भेजा गया था भतीजे। शेख है तो दूध का धुला हुआ उन्हें हरगिज न समझना। जादू की ताकत से उन्होंने ही मजबूर किया कि मैं उस चुड़ैल का गला घोंट दूं। अपनी शैतानी चालों के जरिए उनका मंसूबा यही है, हमारे पांव तले से वो इक्तदार और हुक्मरानी की जमीन खींचना चाहते हैं।
तुम किसी भी सूरत उसका दिल नहीं जीत सकते भतीजे। अपनी जान भी निछावर कर दोगे तो किसी और को ही नवाजेंगे। और वो यूनुस ज़हीन है, समझदार है। उनकी मामला फहमी में तो कोई शुबा ही नहीं। मुझसे पूछो, कोनिया के बड़े बड़े अक्लमंदों से ज्यादा सुल्तान के दानिशमंद बनने के लायक है। मगर हुआ क्या, शेख ने होते की कुर्बानी देने पर भी रजामंद कर लिया उन्हें। जादू नहीं है तो और क्या है ये? बता रहा हूं, बहुत अरसे से बनाया हुआ है ये मंसूबा। इसे इत्तेफाक या मुकद्दर हरगिज न समझो कासिम। ये चाबी तुम रख लो, तिजोरी की चाबी है ये मेरी कासिम। मैं कैसे ले सकता हूं ताया? उस जोड़ेल से मुझे कोई बेटा मिल सका था क्या कासिम? या फिर अपनी सारी मीरास उस नालायक शाहीन को दे दूं? ले लो। अल्लाह तुम्हारा काम आसान करे यूनुस। कटी हुई लकड़ियां खत्म हो रही हैं शेख मोहतरम। अच्छा तो ठीक है, तो फिर आज से तुम्हारा काम दरगाह के लकड़हारे का होगा यूनुस। कुल्हाड़ी उठाओ, अगदाग जाओ, जितनी लकड़ी काट कर ला सको ले आओ, ताकि चूल्हे जलते रहें। जो आपका हुक्म शेख मोहतरम। यूनुस, जरा कुल्हाड़ी तो थमाओ मुझे। इंसान समझता है कि जान सिर्फ उसी के अंदर होती है। तू माफ करने वाला, बख्शिश फरमाने वाला है या रब। उसके गुनाह बख्श दे, जन्नत में आला मकाम अता फरमा।
आमीन। शेख मोहतरम, आओ बैठो कासिम। अफसरदा क्यों हो कासिम? जो होना था वो हो चुका, अब उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। मानता हूं शेख मोहतरम, कुछ भी नहीं हो सकता अब। एक जिंदान में है, एक कब्र में। रह रह कर यही ख्याल आता है, काश ये ना होता कासिम आगा। बहरहाल सरदार तुम्हारा रिश्तेदार तो है ना, तुमने उसे अपने शेख का दुश्मन बनने ही क्यों दिया? उनके साथ जो भी हो रहा है साफ जाहिर है उसका सबब। हमें दुश्मन समझने वालों से दिल साफ है हमारा। खुश रहें, अपनी दुनिया में खुश रहें वो, और उनकी अल्लाह आक़िबत भी बखैर करे कासिम। उन्हें नमाज ज़ोहर के बाद दफन किया जाएगा शेख मोहतरम। अल्लाह की रहमत हो उस पर। आमीन। कासिम, आज के बाद से दरगाह में आने वाले मेहमानों की खिदमत यूनुस अफंदी की जिम्मेदारी है। कोई कोताही नजर आई हमारी खिदमत में शेख मोहतरम? तुम्हारे शेख की आंखें हर शे की खूबियां खामियां देखने के काबिल ही नहीं रही अब कासिम, और अगर देख भी सकें तो हमें यकीन है कि कसूर देखने वाली आंख में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अरे अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। ताया से कह दो कि ताया जान, मुझे वो अहम ओहदा चाहिए, वो मनसब जिस पर मैं इस्लाम और दीन के दर्स दे सकूं। देखे तो जरा हुरिया आपा, आपका छोटा भाई जानदार रोगलू इसे दुनिया की हर नेमत से नवाजना चाहता है। कम से कम यही कह दो कि मुझे अपनी दरगाह खोल के शेख तरीकत बनना है। यही कह दो कि तिजारत कर, दुकान चाहता हूँ, अराजी चाहिए, कुछ नहीं तो महसूल ही माफ करना।
Esselamu Aleyküm. Ya Ebu Bekir Sıddık. Seyyidina Muhammed. Esselamu Aleyküm. Ya Ömerül Faruk. Esselamu Aleyküm. Ya Osman Zinnurreyn. Seyyidina Muhammed. Esselamu Aleyküm. Ya Ali. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. یہ حقیقت کا میدان ہے یونس. اس میدان میں ایک چیونٹی بھی ہاتھی پر چڑھ کر اسے زمین بوس کر سکتی ہے. تو پھر حضرت پیغمبر کا امتی ہونے کے ناطے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقامت اور نیت بھی حضرت علی کی طرح ہونی چاہیے تاکہ ان کی راہ پر چل سکیں. چونکہ ہم سب حضرت علی کے پیروکار ہیں اس لیے ہماری راہ بھی انہی کی طرف جانی چاہیے. تم جانتے ہو یونس تسبیح کے ان دانوں میں بھی امام ہوتا ہے. مت بھولو یونس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جو راستہ نہ جائے وہ کسی بند گلی کی طرح ہے. ہماری راہ بخیر ہو اور کاش یہ راہ ہمیں حضرت علی تک لے جائے. چلو آ جاؤ واپس چلیں بس. اسے کپڑے میں کیوں لپیٹ رہے ہیں؟ کوئی اس سے ڈر نہ جائے کیا اس لیے؟ ہاں اسے دیکھ کر کوئی ڈر بھی سکتا ہے. کسے ڈرنے سے بچانے کے لیے لپیٹ رہے ہیں کلاڑی کو؟ ہم آگ کے لیے بے جان لکڑیاں کاٹتے ہیں. بے جان کو کاٹنے سے کسی جاندار کو خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے. کیا درخت بھی کلہاڑی سے خوفزدہ ہو سکتے ہیں یونس آغا؟ درخت کلہاڑی سے خوفزدہ نہیں ہوتے بلکہ کلہاڑی بردار خوفزدہ ہے کہ درخت ڈر نہ جائیں کہیں. اب مجھے سمجھ آ گیا، اسی لیے ہم ہرے بھرے درخت نہیں کاٹتے ہیں. بالکل یہی سبب ہے. پھر کچا پھل پکا سکیں گے بھلا؟ تم روئی کے گالوں کی طرح سفید براق اور ننھے منھے سے تھے. جب تمہیں یونس آفندی کے ہاتھوں خون میں لت پت دیکھا تھا میں نے تو دل پاش پاش ہو گیا تھا. رب کریم نے اپنا دست رحمت تمہارے ننھے منھے بے بس وجود پہ رکھا تو تمہیں ایک ظالم بھیڑیے کے جبڑوں سے بچا لیا تھا. وہ جو تم پہاڑی سے گر کر یونس آفندی کے پاس آ گئے تھے اسے محض ایک اتفاق نہ سمجھنا پیارے میم نے. اچھا جلدی سے کھانا ختم کر لو پھر چلتے ہیں فقیر خانے.
कासिम आगा, मैं जरा बाजार तक गया था। इजाजत दीजिएगा। अरे आप क्यों जहमत करती हैं, मैं उठा लेता हूँ। रहने दे, आपको भी जहमत होगी खामखा। बासिम सुल्तान, कैसे कहूँ, नाजायज बात नहीं है ये कोई, बल्कि सुन्नत रसूल है। अगर ऐसा ना होता तो पैगंबर आखिरुज़्ज़मा खुद शादी फरमाते, और क्या औरों को भी तरगीब देते इस बात की। आप ये बात कर भी किस तरह रहे हैं कासिम आगा? सोचा भी कैसे? आप मेरे भाई हैं, कुछ तो ख्याल करते आप, कोई लिहाज। आज के बाद से दरगाह में आने वाले मेहमानों की खिदमत यूनुस अफंदी की जिम्मेदारी है। कोई कोताही नजर आई हमारी खिदमत में शेख मोहतरम? तुम्हारे शेख की आंखें हर शे की खूबियां खामियां देखने के काबिल ही नहीं रही अब कासिम, और अगर देख भी सके तो हमें यकीन है कि कसूर देखने वाली आंख में है। हर राह का एक इख्तिताम होता है कासिम आगा, तुम्हारी राह का भी इख्तिताम हुआ। सरूहान और अयूब की तरफ से शेख मोहतरम के लिए खबर आई है। कौन लाया खबर? ये भी कोई पूछने की बात है? याद आ रहे हैं दोनों पीर भाई, कई माह हो गए देखे, शक्लें नजरों से हटती ही नहीं। दरवेश अली की तरफ से भी खबर आई है, वारना में है वो। वारना कौन से इलाके में वाक़ है पीर भाई? बल्गारिया की सरजमीन है, रुमैली में ही है। सब खैरियत से हैं, अल्लाह का शुक्र है। मोहतरम सरी सालतू के इज्जत माप की खिदमत में है। दरवेश अली ने 2 गुजरगाहें तामीर की हैं वहाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वहाँ के ईसाई बाशिंदे भी दुआएं देते हैं जब उन्हें ये खिदमत अंजाम देते हुए देखते हैं। बहुत अच्छा है। पीर भाई। हाँ? कहा सुना माफ कीजिएगा। कासिम आगा, आप लोगों से मुझे कभी भी कोई तकलीफ पहुंची हो तो मैंने माफ किया। हमने भी माफ किया कासिम आगा, मगर अल्लाह की अमान में। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह।
अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह 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 या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। इजाजत है शेख मोहतरम? बैठ जाओ आदम। कासिम आगा शेख मोहतरम, उन्होंने अपना सामान उठाया और दरगाह छोड़कर चले गए। हम इन दरो दीवार के मालिक तो नहीं हैं, निगहबान है बस आदम। आने वाला खुशी से आए, जाने वाला खुशी से जाए। आने वाले के लिए बिस्तर हाजिर, जाने वाले के लिए राहगुजर।